All right, a very good morning to all of you. Today we will be continuing with the software engineering part 2. Here we will be discussing about two diagrams. Like earlier we have completed the basics in software engineering. जिसने वो नहीं complete करा है पहले वो कर लेगा and then only just jump to this lecture where we will be talking of the diagrams. So today, specifically today, I will be talking of only two diagrams. We will be covering two diagrams. One is your data flow diagrams and another one would be your structured chart. Okay, so let us just first get started with a DFD, that is a data flow diagram. See, data flow diagram class क्या होता है, जहां पर हम लोग डेटा के फ्लो का इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली. दैट इज नथिंग बट अ डेटा फ्लो डायग्राम. देन इसमें हम क्या करते हैं, हम डिपिक्ट कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं द इनकमिंग डेटा फ्लो, द आउटगोइंग डेटा फ्लो एंड व्हाट इज द स्टोर्ड डेटा. हम तीनों चीजें इसके अंदर देख सकते हैं. व्हाट इज द इनकमिंग, आउटगोइंग एंड व्हाट इज द स्टोर्ड डेटा. थोड़ी सी थिकनेस मुझे और करनी पड़ेगी इसकी. Right. Then a data flow diagram does not mention anything about how the data flows through the system. ये नहीं बताएगा कि डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है. It is just going to depict the incoming data, outgoing data and the stored data. So there is a prominent difference here between a data flow diagram and a flow chart. What is it? Flow chart depicts the flow of control. Now I think everyone is aware कि what do I mean by the flow of control. आपका control एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जब जा रहा है वो सब बातें हम लोग करते हैं when we are talking of a flow chart. But as far as a DFD is concerned, we are only depicting the flow of data. So see, there is a difference, there is a prominent difference rather in between DFDs and flow charts. So this you should keep in mind. Then DFDs does not contain any control or branch elements. When there is no flow of control, so there is no branch elements or there is no control elements as far as DFD is concerned. All right. Then द नेक्स्ट थिंग, तो ये तो आपको बेसिक समझ में आया कि डीएफडी होता क्या है, हमें क्यों डीएफडी की जरूरत है, व्हाई वी आर डूइंग इट. because we also know that visually when we go through certain things it is very easy to remember what is happening in the system. Likewise अगर हम DFD की बात कर रहे हैं, so if we see it pictorially then it is easy for us to understand what is actually happening, right? Then the next thing for the day is the types of DFD. Types of DFD may you should keep in mind that there are only two types of DFDs. One is something known as a logical DFD and another is something known as a physical DFD. Now when I talk of logical DFD, it concentrates on the system process and the flow of data in the system. For example, आप देख सकते हैं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बना रहे हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज के बीच में किस तरीके से डेटा सिर्फ मूव हो रहा है और उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में do not concentrate. That is something you can say is a logical DFD. But as far as physical DFD is concerned, here we actually understand how the data is flowing and how the data flow is actually implemented in the सिस्टम. तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं फिजिकल डीएफडी की बात कर रही हूँ, सो इट इज मोर स्पेसिफिक एंड इट इज मोर क्लोज टू implementation. When you are implementing it, then we are talking of the physical DFD, otherwise we are talking of the logical DFD. So how many DFDs do we have? We have two types of DFDs, logical and physical DFDs. Next thing that we have for the day is what are the DFD components. So these are the symbols that you need to keep in mind when you are creating a data flow diagram. See, there is an external entity, then there is a process, there is an external entity, there is a process, there is an output, there is a data flow and there is a data store also. Entities क्या होते हैं? They are any source or destination of an information. उसको आप entity बोलते हैं and this you are going to depict with the help of a rectangle. So this is a rectangle, right? Then when as far as your process is concerned, यहाँ पर आप activities या जो भी actions आप ले रहे हैं, the activities and actions which are taken on the data, they are being represented here by a circle. तो आप इसको circle से भी depict कर सकते हैं या फिर round edged rectangles भी अगर हो, please mind it. If we have round edged rectangles also,
that we can also use for representing a process. Then comes the data storage. Data storage ke liye there are two variants of data storage. Either you can represent it with the help of a rectangle with the absence of both smaller sides, or an open rectangle with one side missing. तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप डेटा स्टोरेज को बना सकते हैं. ठीक है, अगर एक तरफ मिसिंग हो तब भी चलेगा, देन ऑल्सो इट इज अ डेटा स्टोरेज. अदरवाइज व्हेन बोथ आर मिसिंग, देन ऑल्सो इट इज अ डेटा स्टोरेज. लाइक दिस इज ऑल्सो अ डेटा स्टोरेज. ओके, then comes data flow. Data flow में you have the movements. Okay, so the movement of data is being it is being shown by a pointed arrow. किस तरफ point कर रहा है. ठीक है, now the data movement is shown from the base of the arrow as its source towards the head as its destination. यानी कि जिस तरफ arrow जा रहा है that is its destination and the other part is its source. Right? तो ये symbols आपको ध्यान में रखने हैं while you are understanding a DFT. ओके, देन यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज डेटा डिक्शनरी. ये पैरेलली हम करते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम जब हम कर रहे हैं तो उसके पैरेलली हमें एक डेटा डिक्शनरी भी पता होना चाहिए. लाइक इन अ सिस्टम व्हाट इज अ डिक्शनरी दैट वी हैव यूज्ड इज नथिंग बट अ डेटा डिक्शनरी एज फार एज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट in this way. तो डेटा डिक्शनरी क्या है? दिस इज ऑल द डेटा लिस्ट आइटम्स अपीयरिंग इन द डेटा फ्लो डायग्राम और द मॉडल ऑफ द सिस्टम. जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. ग्रॉस पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल्स टू रेगुलर पे प्लस ओवर टाइम पे. जो भी आपका रेगुलर पे है प्लस ओवर टाइम पे कर दिया, दैट इज योर ग्रॉस पे. सो फॉर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा आइटम्स उसके आप नेम बता देंगे कि इसमें मान लीजिए ग्रॉस पे यूज हुआ है, इसमें रेगुलर पे यूज हुआ है, इसमें ओवर टाइम पे यूज हुआ है और इसका टाइप क्या है. That is all. But what if we have a composite data items? Composite data items के लिए हमारे पास कुछ primitive data items होते हैं, उसके कुछ symbols होते हैं. Like there are certain data definition operators that you people should be knowing. So what are they? उसको आप एक बार देख लीजिए. एक होता है क्लास साइन प्लस का. प्लस का मतलब क्या है? It denote ये जो symbols हैं, these symbols we are going to use while we are understanding a data dictionary. Okay? तो प्लस साइन जो है इट डिनोट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ टू डेटा आइटम्स. मान लीजिए एक मेरा डेटा आइटम है ए में, अच्छा यहाँ पे दिया भी मैंने एग्जांपल ए और बी, तो इसके बीच में अगर हमें कॉम्पोजिशन दिखाना है तो मैं प्लस लगा दूंगी. इसका क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट्स द डेटा ऑफ ए एज वेल एज द डेटा ऑफ बी ऑल्सो. ओके, देन वी हैव दिस सिंबल जहां पर हमारे पास डबल कॉमा है, तो दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द सिलेक्शन. That is, any one of the data items listed in the brackets can occur. अगर मैंने ऐसे लिखा है A, B, so it represents either A can occur or B can occur. Okay, these things you have to keep in mind. Then if we have these brackets, so अगर हमारे पास ये bracket है तो इसका मतलब ये है that it is going to represent an optional data, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, which may or may not appear. For example, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं A plus bracket में B, so it represents either A can occur or A plus B occur. ठीक है, तो या तो A हो सकता है या फिर A plus B हो सकता है. Right? Then we have these iterative brackets, so it represents the iterative data definition only. जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा है name और आपने साथ में लिख दिया 5, so it is actually representing the 5 name data. That means आप इसको 5 times दिखा सकते हैं. Likewise, अगर आप asterisk print कराते हैं तो asterisk means 0 or any more instances that you people are aware of. Then comes equal to. Equal to का मतलब है it is going to represent the equivalency. Supposedly, if I am saying A is equals to B plus C, so that means it is going to represent A represents B and C. So A is represented by B and C. Then this symbol is for comment. Anything which is appearing in this is considered as a comment. तो ये कुछ आपको composite data items में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. अगर हमारे पास एक से ज्यादा नेम है, 2-3 नेम है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, इंक्लूड करने हैं नहीं करने, सो दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन यू शुड कीप इन माइंड. राइट, अब चलेंगे, हम लोग ने अभी तो डेटा फ्लो डायग्राम के बेसिक्स पढ़ लिए. अब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी. एग्जांपल्स 2-3 एग्जांपल्स इतने अच्छे से बता दिया जाएगा कि अब आपको उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत हो गई, डीएफडी पूरा क्लियर हो जाएगा. लाइकवाइज हम लोग फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड चार्ट. आज ही कंप्लीट करना है. सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड. ये शायद यहाँ से कट गया. एनीवेज, सो द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द डे for creating a DFD is that
देयर इज अ टिक टैक टो कंप्यूटर गेम विच एवरीवन इज अवेयर ऑफ, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस टिक टैक टो गेम में हम क्या करते हैं. टिक टैक टो गेम इज अ कंप्यूटर गेम in which a human player and a computer make alternative moves. ठीक है, एक बार human खेलेगा, एक बार computer, human computer like that. And supposedly in the example it has been given that we have a 3x3 square. ठीक है, 3 rows, 3 columns. So this is 3x3 square. So a move consists of marking previously unmarked square. आप अगर एक move करोगे तो वो previously वाला जो है उस unmarked पर आप mark करेंगे. जो प्लेयर फर्स्ट प्लेस करेगा 3, ये हम सबको गेम पता है, 3 कंसेक्यूटिव मार्क्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्क्वायर, जिसके कंसेक्यूटिव 3 मार्क्स आ जाएंगे अलोंग द स्ट्रेट लाइन और अ डायगोनल लाइन. ठीक है, he or she wins. Now it could be a row, अब वो रो में भी हो सकता है, डायगोनल में भी हो सकता है और एक कॉलम में भी हो सकता है. It could be in this way also, in this way also, or it could be in this way also. Right? तो ये आप सबको मालूम है. Clear? As soon as either the human player or the computer wins, then a message congratulating the winner should be displayed. आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर जैसे ही कोई जीतेगा उसको आपने congratulate करना है. And if neither player wins to get the 3 consecutive marks, तो हम क्या बोलेंगे that the game is draw हो गया. ठीक है, and computer जो है he always tries to win the game. ठीक है, तो ये तो शायद यहाँ पे जो कंटेक्स्ट डायग्राम होता है, दैट इज द फर्स्ट डायग्राम, द बेसिक डायग्राम, वो यहाँ पर कट गया है. बट यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, लाइक सपोजिटली देयर इज अ ह्यूमन प्लेयर एंड सपोजिटली देयर इज अ कंप्यूटर प्लेयर. ठीक है, तो ये एक मूव करेंगे एंड लेट्स से वी हैव अ सिस्टम, टिक टैक टो सिस्टम, और ह्यूमन भी जो है ये कुछ मूव कर रहे हैं और यहाँ पर इसको कुछ डिस्प्ले हो रहा है. लाइक दिस इज द बेसिक डायग्राम जो आपको समझ में आता है. फर्स्ट अगर मूव कंप्यूटर कर रहे हैं, फिर ह्यूमन को दिखाई दे रहा है, फिर ह्यूमन प्ले करेगा, फिर कंप्यूटर को दिखाई देगा, लाइक दैट. और जिसका सबसे पहले मूव हो जाएगा, 3 मूव्स कंसेक्यूटिव मूव्स, इधर इन अ सिंगल रो, कॉलम और इन अ डायगोनल, ही और शी विंस द गेम. राइट, दिस इज द स्टोरी. अब मान लेते हैं अगर हमें 0 लेवल डीएफडी से फर्स्ट लेवल डीएफडी में जाना है, तो इसमें हमारे पास थोड़ा डिटेलिंग बढ़ जाता है और कुछ नहीं है. व्हाइल वी आर गोइंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट डायग्राम, सी अंडरस्टैंड द डीएफडी लेवल 0 is also known as context flow diagram, the basic diagram, the basic picture of the diagram, the basic, you can say the blueprint of what we are going to do in a particular system. Okay, all right. तो यहाँ पर जब हम DFD 1 में जा रहे हैं, so we have a detailed thing, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल हो गया. यहाँ पर क्या हुआ, हमने सिंबल्स को इंक्रीज कर दिया. लाइक वी हैव 4 प्रोसेसेस नाउ. अर्लियर इफ यू कैन सी, यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल ही प्रोसेस था. यू कैन से दिस इज 0, this process is a single process 0, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज थे. वी ऑलवेज गिव द मार्किंग्स टू अ प्रोसेस, हम और किसी को नहीं देते. अब इसी सिस्टम को मुझे थोड़ा डिटेल्ड में जाना है, तो मैं DFD 1 में चली गई. अब जब मैं DFD 1 में चली गई, मैंने एक 0.1 कर देना है, एक 0.2 कर देना है, 0.3 कर देना है और एक 0.4 कर देना है. 0.1 में क्या कर रहे हैं, दिस इज अ डिस्प्ले बोर्ड. ठीक है, देन फॉर वैलिडेटिंग द मूव वी हैव 0.2, फॉर प्लेइंग द मूव we have 0.3 and for checking the winner we have 0.4. आपने 4 प्रोसेसेस उसको दिखा दिए. अब वो क्या आ रहा है, पहला एक मूव आ रहा है that is being validated और उसको हम स्टोर भी कर रहे हैं. एक डेटा हमने रख लिया. Now you know this is a data storage. इस डेटा स्टोरेज को मैंने नाम दिया है बोर्ड. ठीक है, तो ये वैलिडेट होकर आप स्टोर भी कर रहे हैं. फिर डिस्प्ले बोर्ड में दिखाने के लिए भी आप दिखा देंगे. यहाँ से इट इज, यू कैन सी दैट देयर इज अ डेटा फ्लो आउटवर्ड्स व्हिच इज गोइंग टू डिस्प्ले द डेटा व्हेन इट इज नीडेड. लाइक फॉर चेकिंग द विनर आल्सो यू कैन शो द डेटा ओवर हियर. बट फॉर प्लेइंग द मूव्स आपके पास क्या है, अगर आप कोई मूव प्ले कर रहा है, वो ह्यूमन भी है या फिर कंप्यूटर भी है, तो इस तरीके से आप उसका मूव जो है उसको प्ले करने के बाद स्टोर भी कर रहे हैं डेटा में. सो दिस इज मोर डिटेल्ड, यू कैन से. डिटेलिंग जहां पर है उसका मतलब यही है, एक सिंगल प्रोसेस को आपने कंपोज करना है इनटू मोर प्रोसेसेस. जब आप एक से ज्यादा, एक प्रोसेस को ही बहुत ज्यादा प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हो, उसकी डिटेलिंग की बात कर रहे हो, दैट इज समथिंग नोन एज DFD 1. अब जब मान लीजिए मैंने यहाँ पे DFD 2, आई थिंक आई हैव नॉट मेड इट,
Yes, but if you want to create DFD level 2 also, so if you can ask me that is it possible to create DFD level 2? Yes, you can create it, but in that case you have to further decompose a particular process. मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मैडम जैसे कि अगर मुझे पास चेक विनर है, इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस को मुझे फर्दर डिकम्पोज करना, तो आप उसको करेंगे और आप उसको बोलेंगे दैट इज DFD लेवल 2. सो यू कैन डिकम्पोज इट इनटू मोर प्रोसेसेस. लाइकवाइज इसका भी आप डिकम्पोज कर सकते हो, इसका भी डिकम्पोज कर सकते हो, लेकिन एक एक प्रोसेस को आपको सेपरेटली डिकम्पोज करना पड़ेगा. ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स. अब मान लीजिए इसी पर्टिकुलर DFD में अगर बोला जाए कि आप थोड़े से डेटा डिक्शनरी जो आपने यूज किया है, व्हाट इज दिस मूव, व्हाट इज दिस प्ले मूव, व्हाट इज दिस गेम, व्हाट इज दिस रिजल्ट, तो उसको एक्सप्लेन करिए. दैट यू कैन एक्सप्लेन इन अ डेटा डिक्शनरी विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. तो आप देख सकते हैं मूव क्या है. मूव कोई भी एक इंटीजर है जिसका नंबर 1 से 9 के बीच में होता है. डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले आपका गेम डिस्प्ले कर रहा है, साथ साथ आपका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर रहा है. गेम में क्या है, गेम में बोर्ड है, और बोर्ड में क्या है, बोर्ड में भी आपको पता है इंटीजर्स है. डेटा आप जो दे रहे हैं वो 1 से 9 के बीच की रेंज में रह रहा है, सो दैट इज द डेटा. देन कम्स रिजल्ट. रिजल्ट में आप क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, या तो कंप्यूटर 1 होगा या फिर ह्यूमन 1 होगा, अदरवाइज इट इज ड्रॉ, द गेम इज ड्रॉ. तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर DFD if it is asked, or a data dictionary you can understand in that way. Then the next thing, that is balancing a DFD. अगर आपको एक DFD को बैलेंस करना है तो ये कैसे करेंगे और इसका क्या मतलब है. मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज एन MCQ टाइप पेपर, इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. तो मतलब यहाँ पर समझ लो, द डेटा दैट फ्लो इनटू और आउट ऑफ अ बबल. ओके, अब इस प्रोसेस को मैं एक चीज और बोल दूं, इसको हम बबल भी बोलते हैं. इट इज अ बबल और इट इज अ प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, तो जो डेटा फ्लो इनटू यानी कि एक बबल के अंदर आ रही है या उसके बाहर जा रही है, वो नेक्स्ट लेयर पे भी मैच करना चाहिए. मान लीजिए एट प्रेजेंट दिस इज नोन एज, फर्स्टली लेट मी से दैट दिस इज नोन एज बैलेंसिंग अ DFD. ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा जो ऊपर लेवल 1 था DFD का, इसमें जो आइटम्स हैं वो D1 एंड D3 जो है वो फ्लो आउट कर रहे हैं ऑफ द बबल 0.1. यू कैन सी इन द पिक्चर 0.1. यहाँ पर देखिए D1 आउट जा रहा है और D3 आउट जा रहा है, और D2 जो है ये इसके अंदर आ रहा है. ठीक है, तो जब नेक्स्ट लेयर में जब 0.1 को आप डिकम्पोज करेंगे, आप ध्यान रखेंगे डिकम्पोजिशन में भी 2 लेयर्स शुड बी आउट एंड अ सिंगल लेयर शुड बी इनसाइड. सो यू कैन सी जब हमने 0.1 को दोबारा अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो क्लास जो मार्किंग होती है, जो स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, वो हो जाएगा 0.1.1. तो 0.1.1 को डिकम्पोज किया आपने 0.1.2 और 0.1.3. अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर जो आ रहा है इनसाइड दैट इज D2, लेकिन जो आउटसाइड जा रहा है दैट इज D1 also and D3 also. So you can see that they are matching. So they are matching, that means a particular DFD is balanced. बैलेंस करने की हमें जरूरत पड़ती है बिकॉज इन केस व्हेन द DFD becomes quite complex, हम नहीं समझ पाते हैं कि इसकी कितनी एंटिटीज गई, कितने आउटसाइड गए, बिकॉज यहाँ पर तो कोई फ्लो कंट्रोल फ्लो है ही नहीं. सो ये कुछ इश्यूज भी हैं, यू कैन से दीज आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स आल्सो, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रेफरिंग और वी आर मूविंग टुवर्ड्स अदर डायग्राम्स. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, देन कंटेक्स्ट डायग्राम मैंने अभी बताया, दिस इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम of the data flow representation of the system. It represents the entire system as a single bubble. एक ही बबल में ये पूरे सिस्टम को ये डिपिक्ट कर देता है. इस बबल की लेबलिंग होती है अकॉर्डिंग टू द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम. जो डेटा फ्लो एरोज होती हैं, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा नेम्स, एंड कंटेक्स्ट डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज द जीरो लेवल डायग्राम. चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेटिंग software. Supposedly we want to calculate the root mean square. So we have a software system called RMS calculating software which is going to read 3 integral numbers. ये 3 numbers read करेगा यूजर से. उसका range क्वेश्चन में हमें मेंशन है -1000 से +1000, and then वो उसका root mean square निकालेगा of the 3 numbers and it is going to display it. वेरी सिंपल. तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमें क्या करना है, पहले तो बनाना है DFD 0. So this is the context diagram, और यू कैन से दिस इज DFD 0 लेवल. तो क्या हो रहा है, वी हैव अ यूजर,
यूजर ने कुछ डेटा आइटम्स इनपुट करें, ये जो कैलकुलेटर है, जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, दिस इज बीइंग नंबर्ड मार्क्ड एज 0, ये आरएमएस कैलकुलेट कर कर इसको दे देगा. सो वी हैव अ सिंगल प्रोसेस अगेन. सो दिस इज अ लेवल 0 डायग्राम. अब मान लीजिए अगर हमें इसको लेवल 1 में बनाना है, जो कि आप विच यू कैन ऑल्सो create as, you can take it as a homework, you can do it by yourselves and everyone can create, they can think, everyone thinks differently, so they can think कि इसका ये प्रोसेस फर्दर इस तरीके से डिवाइड करा जा सकता है, इस तरीके से डिवाइड करा जा सकता है. यू कैन क्रिएट अ फ्यू मोर प्रोसेसेस एंड यू कैन डू इट. But one thing I need to specify over here, that to develop level 1 DFD, you have to examine the high level functional requirements. Supposedly, if there are between 3 to 7 functional requirements, तो आप उनके लिए particularly कुछ bubbles बना देंगे और level 1 में दिखा देंगे. लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास सब फंक्शंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लाइक 5 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, तो आप फर्दर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को भी डिवाइड कर सकते हैं लेवल 1 में ही. सपोजिटली नहीं कैलकुलेट हो रहा तो आप उसको लेवल 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन देन एग्जामिन द इनपुट डेटा टू दीज फंक्शंस एंड द डेटा आउटपुट बाय दीज फंक्शंस एंड वी कैन रिप्रेजेंट देम अप्रोप्रिएटली इन द डायग्राम. मान लीजिए 7 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से ज्यादा है, ये हमने ही एक मार्किंग दे रखी है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे और उसको एक पर्टिकुलर 1 DFD में डालेंगे और फिर फर्दर लोअर DFD लेवल्स में हम उसको सब फंक्शंस में डिवाइड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे. So each bubble in the DFD represents a function. हर एक बबल का मतलब है कि वो कोई ना कोई फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. बबल्स को आप फर्दर सब फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हो एट द सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द DFD. ये जो डीकम्पोजिशन होता है बबल का, ये कहीं नोट करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम फैक्टरिंग भी बोलते हैं या फिर एक्सप्लोडिंग अ बबल भी बोलते हैं. दिस में बी आस्क्ड फॉर अ सिंगल मार्क ऑल्सो कि फैक्टरिंग क्या है या एक्सप्लोडिंग अ बबल क्या है. दिस इज नथिंग बट दिस इज द डीकम्पोजिशन ऑफ ए बबल. हर एक बबल जो होता है एट एनी लेवल ऑफ द DFD, इसको आप 3 से 7 बबल्स में, दिस इज अ मार्क, इससे ज्यादा आप जाइएगा मत, 3 से 7 बबल्स में ही कोशिश करिएगा कि वो आ जाए. ठीक है, ज्यादा बबल्स होने से वो बहुत सुपरफ्लुअस हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ठीक है, और आप डिकम्पोजिशन जब तक चाहें, जब जब जितना अपने एल्गोरिथम को सिंपल करने के लिए जितना चाहे उतना डिकम्पोज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है. सो दिस यू कैन डू इट एज ऑन योर ओन ऑल्सो एंड यू कैन आस्क मी इन केस इफ यू आर हैविंग द डाउट्स. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Now that is an example of a supermarket. So a supermarket needs to develop the following software to encourage the regular customers. Regular customers को encourage करने के लिए हमने एक software बनाना है and for this the customer needs to supply his or her. Customer से हम उसका residence address पूछेंगे, उसका telephone number पूछेंगे, उसका driving license number पूछेंगे और हर एक customer को उस स्कीम के accordingly register करने के लिए हमें एक unique customer number भी देंगे जो कंप्यूटर जनरेट करेगा, हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो जनरेट करेगा. अ कस्टमर कैन प्रेजेंट हिज CN, दैट इज द कस्टमर नंबर, टू चेक out the staff when he makes any purchase. In this case, the value of his purchase is credited against his customer number. And at the end of each year, हर साल के बाद हम क्या करेंगे? We are going to award the surprise gifts to 10 customers. हम 10 customer को gift surprise gifts देंगे who make the highest total purchase over the year. जिसने सबसे ज़्यादा over the year highest purchase किया है. And also it intends to award 22 karat gold coin to every customer whose purchase exceeded rupees 10,000. जिसने भी 10,000 से ज्यादा खर्चा किया है उसको हम एक गोल्ड कॉइन भी देंगे. एंड द एंटिटीज अगेंस्ट CN आर रीसेट ऑन द डे ऑफ एवरी ईयर आफ्टर द प्राइज विनर्स लिस्ट आर जनरेटेड. ऑब्वियसली एक बार जो हमने किसी को एट द एंड ऑफ अ ईयर हमने अगर प्राइज दे दिया है तो उस दिन हम लास्ट डे में क्या करेंगे, हम लोग पूरे के पूरे जो डेटा है उसके लास्ट डे को हम उस पर रीसेट कर देंगे. ठीक है, reset कर देंगे so that the new customers or the previous customers if they are the purpose is to make the regular customers be our customers for long. ओके, तो ये चीज के लिए हम लोग ने क्या करना है, उसको रीसेट करना है और उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो है वो जनरेट करनी है. तो देख लीजिए आप लोग, अगर आप DFD 0 देखेंगे लाइक द लेवल 0, तो वी हैव यू नो देयर वुड बी अ सिंगल 0th लेवल पर देयर इज अ प्रोसेस सुपरमार्केट सॉफ्टवेयर. हो क्या रहा है, सेल्स क्लर्क जो है वो सेल्स की डिटेल दे रहा है. मैनेजर क्लर्क जो है वो क्या, सॉरी मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग टू जनरेट द विनर कमांड, वो एक विनर कमांड दे रहा है. कस्टमर जो है वो कस्टमर की डिटेल्स जैसे ही दे रहा है तो उसको एक CN मिल जा रहा है और ये सारा काम जो है वो करने के बाद देयर वुड बी अ विनर लिस्ट दैट वुड बी रेडी. तो ये हो गया आपका DFD लेवल 0 में. आप कुछ डिफरेंट वे भी सोच सकते हैं, यू कैन
ऑल्सो शेयर इट इन द कॉमेंट्स ऑल्सो। अब मान लीजिए मैं इसको फर्दर डिकम्पोज करना चाह रही हूँ जीरो को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 0.1 दी हूँ, 0.2 दी हूँ, 0.3 दी हूँ। 0.1 में क्या कर रही हूँ, आई एम सिंपली रजिस्टरिंग द कस्टमर। रजिस्टरिंग द कस्टमर मतलब क्या हुआ, कस्टमर की डिटेल्स लो, उसका एक कस्टमर नंबर जनरेट करो, इनका डेटा एक कस्टमर डेटा में भी स्टोर करो, ठीक है। ये स्टोर करने के बाद अगर हमें विनर की लिस्ट जनरेट करनी है तो हम कस्टमर डेटा से ही लेंगे ना, सो द डेटा हैज बीन टेकन, देन वी आर जनरेटिंग द विनर लिस्ट, और उसके बाद अगर हम चाहें तो विनर कमांड वापस रीजनरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइल वी आर रजिस्टरिंग द सेल्स, सेल्स डिटेल्स जब आ रही हैं, ये सेल्स डिटेल भी हम एक सेल्स इन्फॉर्मेशन में रख रहे हैं और ये भी हम दे रहे हैं। मान लीजिए सपोजली इफ यू हैव अ कस्टमर नेम ए बी एंड सी, इस कस्टमर ने क्या क्या एंटिटीज खरीदी, लाइक लेट्स से इसने 1 2 और 3 एंटिटीज खरीदी, इसने 4 5 खरीदा, इसने मान लीजिए 3 7 1 खरीदा, लाइक दिस, और भी कुछ भी एंटिटीज खरीदी। तो अगर हम चेक करना चाहें, हम विनर लिस्ट में ये बताना चाहें कि जो विनर ए है उन्होंने ये सेल्स में लिया है, तो वो आप सेल्स इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी इट इज नथिंग बट अ मोर डिटेल्ड वर्जन एट द नेक्स्ट लेयर और एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ DFDs, ठीक है। फर्दर अगर आप DFD लेवल 2 में जाएंगे तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस उठाकर आप डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू मोर एंड मोर फर्दर सब फंक्शंस। ऑलराइट, हर एक प्रोसेस कोई काम कर रहा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इट इज परफॉर्मिंग सम और द अदर फंक्शंस, लाइक रजिस्टर कस्टमर का एक काम है कि उसने कस्टमर की डिटेल्स रजिस्टर करनी है, कस्टमर नंबर जनरेट करना है। रजिस्टर सेल्स का काम है, उसने सेल्स की डिटेल लेनी है और सेल्स इंफॉर्मेशन में स्टोर करनी है। जनरेट विनर लिस्ट का एक काम है, उसने कस्टमर की भी डेटा लेना है, सेल्स इंफॉर्मेशन का भी डेटा लेना है और उसके बाद विनर लिस्ट जो है उसने जनरेट करना है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए अगर हम DFD लेवल 2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने 0.2 यानी जनरेट विनर लिस्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहा तो क्या हो जाएगा। नाउ यू नो व्हाट इज दिस मार्किंग 0.2.1, यानी कि ये वाला प्रोसेस फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3 एंड फर्दर 0.2. दिस शुड बी 4, ओके। तो क्या हो रहा है, जनरेट सरप्राइज, जनरेट गिफ्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने जो भी सेल्स में डेटा है उसको लेना है और आपने लिस्ट जो है जनरेट करनी है। फिर फर्दर क्या है, सेल्स इंफॉर्मेशन और विनर कमांड जो है आपने सारा कुछ ले लिया, सेल्स इंफॉर्मेशन और सिस्टम आपको बताएगा कि विनर कौन है। वो कमांड आते ही आपने टोटल सेल्स में चले जाना है। टोटल सेल्स में आने के बाद देन देयर इज अ जनरेट द गोल्ड कॉइन आल्सो एंड गिफ्ट विनर आल्सो। तो वो दोनों चीजें जो हैं आपने यहाँ से लिया एंड यू आर जनरेटिंग द लिस्ट आल्सो। एंड फॉर रीसेटिंग वी हैव रीसेट द सेल्स इंफॉर्मेशन। ये रीसेटिंग आप कब करेंगे, आफ्टर 1 year, because it has been mentioned in the question, okay। तो इस तरीके से आप फर्दर डिटेलिंग में जा सकते हैं, जितना डिटेलिंग में जाएंगे उतने फर्दर डिकम्पोजिशन आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, मैंने इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं कि अब आपको और क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देखेंगे इसको एंड द थिंग्स वुड बी इनटू योर माइंड, ओके। Next thing is a trading house automation software. Now the trading house wants to develop a computerized system that would automate the various bookkeeping activities associated with the business. So there are certain features of the system to be developed. Firstly, it has a set of regular customers. The customers place orders with it for the various kinds of commodities. The trading house maintains the names and the addresses of its regular customers. Customers को कुछ commodities चाहिए लेकिन उन customers का name और address हम लेंगे. Each of these regular customers would be given a unique customer identification number. ठीक है? Once the order is placed, as per the current practice, the accounts department is going to first check the credit worthiness of the customer. वो क्रेडिट वर्दी है भी कि नहीं है। बाय एनालाइजिंग द हिस्ट्री ऑफ पेमेंट्स तो डिफरेंट बिल्स हम बता सकते हैं कि वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, उसने टाइमली पेमेंट करी है कि नहीं। मान लीजिए इफ द कस्टमर इज नॉट क्रेडिट वर्दी तो उसके ऑर्डर्स हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्शन मैसेज कुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड। बट इफ द कस्टमर इज क्रेडिट वर्दी तो जो उसने आइटम्स ऑर्डर करी है वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे एंड we are going to the items in the order which the trading house does not deal with, they are not processed. जो हमारे पास commodity होगी वो हम provide कर देंगे, जो commodity नहीं है वो हम उसे mention कर देंगे। The items in the customer's orders that the trading house deals with are they are checked for the availability in the
इन्वेंट्री, हमारे पास एक इन्वेंट्री है, उसमें हम चेक करेंगे आइटम्स हैं कि नहीं है। इफ द आइटम्स आर अवेलेबल इन द एंटिटी इन द डिजायर्ड क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, अ बिल विद द फॉरवर्डिंग एड्रेस ऑफ द कस्टमर इज प्रिंटेड। एक तो ये काम हम करेंगे। सेकेंड, अ मटेरियल इशू स्लिप इज प्रिंटेड, द कस्टमर कैन प्रोड्यूस दिस मटेरियल इशू स्लिप एट द स्टोर हाउस, और वो डिलीवरी ले सकता है। थर्ड, an inventory data is adjusted to reflect the sale to the customer. Fourth, if any of the ordered list, अगर कोई भी ordered list available नहीं है, यानी हमारी inventory इतनी sufficient नहीं है, then these out of the stock items along with the quantity ordered and the CIN numbers, they are stored in the pending order. फिर हम pending order file में उसको store कर रख देंगे for further processing to be carried out when the purchase department issues the generate indent command. तो जैसे ही सामान आएगा, सिस्टम हमें एक कमांड देगा generate indent, तो हम उसको further processing कर सकते हैं. Then the purchase department should be allowed to periodically issue the commands to generate the indents. When the command to generate indents is issued, then the system is going to examine the pending issue to further determine अगर वो pending है तो उसको further वो process कर सकता है. System should also answer the managerial queries regarding the statistics of the different items which are sold over a given period of time. हमारे एक सॉफ्टवेयर में ये भी होना चाहिए कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हमें रिकॉर्ड रखना है. एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सोल्ड एंड द प्राइस रियलाइज्ड वुड बी मेंशन्ड. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट. दिस इज स्ट्रेट अवे DFD लेवल 1. तो सॉरी 0. तो क्या हुआ, दिस इज DFD 0. वी हैव ट्रेडिंग हाउस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर 0. अब यहाँ पर देयर इज अ मैनेजर अगर कोई क्वेरी कर रहा है तो ये सॉफ्टवेयर कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएगा, ठीक है. फिर देयर इज अ परचेज डिपार्टमेंट. जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ इंडेंट दिया, ये इंडेंट को फर्दर फॉलो कर कर एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा. लाइकवाइज व्हेन देयर इज अ कस्टमर हु इज ऑर्डरिंग, तो उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको कुछ रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसी को हमने DFD लेवल 1 में जब कन्वर्ट किया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर दैट इज 0.1, ठीक है. देन वी आर हैंडलिंग द इंडेंट रिक्वेस्ट दैट इज 0.2. देन वी आर प्रोसेसिंग द ऑर्डर 0.3 एंड देन वी आर हैंडलिंग द क्वेरी दैट इज 0.4. तो हो क्या रहा है, व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, हमारे पास एक कस्टमर फाइल है जिससे हम लोग डेटा ले सकते हैं, कस्टमर की कुछ हिस्ट्री है उससे भी हम डेटा ले सकते हैं, उसने अभी क्या ऑर्डर दिया उससे भी हम डेटा ले सकते हैं. अब उसके ऑर्डर को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करने के बाद एक डेटा में स्टोर करिए, रिजेक्ट करना है तो यहीं से ही आप रिजेक्ट कर रिजेक्टेड मैसेज भेज दीजिए, ठीक है. पैरेलली आपको इन्वेंट्री में भी चेक करना है कि हमारे पास वो मटेरियल्स हैं भी कि नहीं है, ठीक है. सो देयर इज एन आइटम फाइल आल्सो. सो मेनी फाइल्स आर गिवन इनटू अ सिंगल प्रोसेस, राइट. व्हाइल वी आर हैंडलिंग द इंडेंट, क्या हो रहा है, हमारे पास वेंडर की लिस्ट है, इंडेंट की रिक्वेस्ट है और पेंडिंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट है. तीनों चीजें जब जाएंगी तभी इंडेंट्स फर्दर फॉरवर्ड होंगे, काम होगा. इन केस द ऑर्डर प्रीवियसली वाज कैंसल्ड और इट वाज इन द प्रोसेस, तो हम उसको फर्दर कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है. देन प्रोसेस ऑर्डर. तो प्रोसेस ऑर्डर में क्या हो रहा है, आप इन्वेंट्री से भी ले रहे हैं, आप एक्सेप्टेड ऑर्डर भी ले रहे हैं, आप सेल्स स्टैटिस्टिक्स से भी ले रहे हैं, एंड फाइनली यू आर जनरेटिंग द बिल एंड द मटेरियल इशू एंड मटेरियल इशू स्लिप. जो जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है वही आप अपने आउटपुट में दिखा देंगे. देन फॉर हैंडलिंग द क्वेरी, सपोजली इफ देयर इज अ क्वेरी, तो आप स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करिए. उसकी हेल्प के लिए वी हैव अ सेल्स स्टैटिस्टिक्स व्हिच यू कैन रेफर, राइट. तो इस तरीके से आप थोड़ा डिटेल्ड कर कर अपना DFD बना सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि DFD में अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या डेटा आपने यूज किया, व्हाट इज द डेटा डिक्शनरी बीइंग यूज्ड फॉर द DFD मॉडल ऑफ TAS, सो यू कैन से रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स में एक बिल है, मटेरियल सेल इशू स्लिप है, रिजेक्ट मैसेज है, क्वेरी है. क्वेरी में हमने कोई भी पीरियड में क्वेरी जो भी मांग रहा है उसके स्टैटिस्टिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं. पीरियड में हमारे पास एक डेट है, एक मंथ है, एक ईयर है और एक डे है. डेट में हमारे पास ईयर, मंथ और डे है. ईयर में हमारे पास इंटीजर, मंथ है और इंटीजर है. देन डे में हमारा कोई भी इंटीजर है. तो यू नो दीज थिंग्स, मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ डेटा डिक्शनरी आप कैसे मेंशन करेंगे, इसमें ये सिंबल क्या है, इसमें ये सिंबल क्या है, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे, ये सब पता है आपको. Then customer ID में we have the items plus like in order we have the customer ID, then items and then the quantity, any number 0 से
जीरो नंबर भी हो सकता है, एनी नंबर. देन देयर इज एन ऑर्डर नंबर. एक्सेप्टेड ऑर्डर में देयर इज एन ऑर्डर विच इज बीइंग this is according to the ordered items which are available in the inventory. रिजेक्ट मैसेज में आप ऑर्डर प्लस मैसेज भेज देंगे रिजेक्शन का. पेंडिंग ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी, आइटम और क्वांटिटी. कस्टमर एड्रेस में नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, पिन. Name is a string, house number is a string, street number is a string, city is a string, pin is a string. Customer ID में क्या है? This is an integer, customer file and so on. So I think this you can understand. Statistics आपने यूज किया, तो एक एक जो भी चीज आपने यूज की है आप डेटा डिक्शनरी में मेंशन करेंगे. And you should always make it a habit. Always make it a habit to mention the data dictionary involved in the particular DFDs. ओके, तो ये आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अपने अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. मैंने बहुत बड़ा DFD दे दिया है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं. अब हमने DFD कंप्लीट कर लिया है क्लास. काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपको समझ में भी आ गई स्टोरी. अब DFD हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं? व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ DFD? So DFD leave ample scope to be imprecise. In the DFD model, the function performed by a bubble is judged by its लेबल. आप उसके प्रोसेस अभी आप देख भी रहे होंगे, आप उसके बबल से ही आप जज करने लग जा रहे हैं कि वो क्या काम करेगा. और मैंने ही मेंशन करा है, आप जज करिए, बिकॉज द बबल इज गोइंग टू डिपिक्ट द फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग. हाउएवर अ शॉर्ट लेबल मे नॉट कैप्चर द एंटायर फंक्शनैलिटी ऑफ अ बबल. अगर आपने एक शॉर्ट लेबल दे दिया ABC, TMS, RMS, LMS, तो आप नहीं समझ पाएंगे व्हाट इट इज डूइंग. For example, a bubble named find book position has only an intuitive meaning and doesn't specify several things. For example, what happens when some input information is missing, when something is incorrect, ये mention नहीं करता है. कुछ किसी ने गलती कर दी, कुछ भी error हो सकता है, तो वो ये include नहीं कर रहा है. Further, the find book position bubble may not convey anything regarding what happens when the required book is missing. जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा और जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो क्या करें? Like that. Then the control aspects are not defined by DFD. ये बात तो ध्यान में रखनी है. For example, the order in which the inputs are consumed and your outputs they are being provided by a bubble, they are not specified. A DFD model does not specify the order in which the different bubbles are executed. ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन भी है वो भी it is also very important, and the method of carrying out a decomposition to arrive at the successive levels is carried out at only subjective level. ये काफी ऑब्जेक्टिव पे नहीं जा रहा है, सब्जेक्टिव लेवल पे हो रहा है. and due to this reason, even for the same problem, several alternative DFD representations are possible. इसीलिए एक ही क्वेश्चन के आप कोई डिफरेंट DFD बनाएंगे, मैं कोई डिफरेंट DFD बनाऊंगी, कोई और कोई डिफरेंट DFD बना सकता है. Further, many times it is possible to say which DFD representation is superior. फिर कौन सा superior है, कौन सा preferable है, ये choose करना भी या ये select करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, so these are certain drawbacks or the shortcomings of DFD. So the next thing that we have to do for today is the structure chart. Okay, so structure chart हम next पढ़ते हैं. That is part 2 of the diagrams that we have to cover in the design phase that we have already started in the previous session. So the aim of the structured design is to transform the results of the structured analysis. यानी कि जो DFD है उसी को ही हम convert करते हैं एक structured chart में. Structured नाम से ही समझ में आता है, we are going to structurally, we are going to define the structure of the particular system. अब इसको transform करने के लिए DFD से स्ट्रक्चर चार्ट बनाने के लिए दो स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं. एक होता है क्लास ट्रांसफॉर्म एनालिसिस एंड अनदर वन इज द ट्रांजैक्शन एनालिसिस. एक होता है ट्रांसफॉर्म और एक होता है ट्रांजैक्शन. नॉर्मली वन स्टार्ट्स विद द लेवल 1 DFD. हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं एंड वी ट्रांसफॉर्म इट्स इनटू द मॉड्यूल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ईदर द ट्रांसफॉर्म और द ट्रांजैक्शन एनालिसिस एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द लोअर थिंग्स. एंड एट ईच level of the transformation, it is very important to determine whether the transform is applicable or transaction is applicable to a particular DFD. ठीक है, तो जो बिल्डिंग बॉक्स इसमें आप यूज करते हैं वो क्या है? एक होता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो कि एक मॉड्यूल डिफाइन करेगा. एक होता है मॉड्यूल इन्वोकेशन एरोज. ये जो एरोज हैं, here the control is passed on from one module to another module in the direction of the connecting arrows. Then there is a data flow diagram arrows. Data flow arrows are annotated with the data name. The named data is passing from one module to another in the direction of the
arrow. Then there are certain library modules. They are also represented by the rectangle also, but with double edges. Okay. Then we have a selection. Selection is represented by a diamond symbol. Repetition, like if there is a loop involved, so for that we have a repetition, so it is represented by a loop around a control flow arrow. Okay. अब स्ट्रक्चर चार्ट को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ने से पहले एक बार हम एक डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चर चार्ट और फ्लो चार्ट का. स्ट्रक्चर चार्ट डिफर्स फ्रॉम फ्लो चार्ट इन 3 प्रिंसिपल वेज. फर्स्ट, it is usually difficult to identify the different modules of the software from its flowchart representation. flowchart से आप ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि उसके कौन कौन से डिफरेंट मॉड्यूल्स हम बनाए while we are converting it to a structure chart. Point number 2. The data interchange among different modules is not represented in a flowchart. flowchart में कौन सा डेटा इंटरचेंज हो रहा है ये भी नहीं पहचान पाते हम लोग, तो उसको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर चार्ट में डिपिक्ट करेंगे. Point number 3. The sequential ordering of the task inherent in a flowchart is suppressed in the structure chart. जो ऑर्डरिंग हमने टास्क की मेंशन करी होती है DFD में वो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सप्रेस कर देते हैं. That is not being involved. Okay, so this is the difference. Now let's just talk of the steps involved in a DFD. So the first step in the transform analysis is to divide the DFD into 3 parts. सबसे पहले हमने DFD को एक इनपुट में डिवाइड करना है, एक लॉजिकल प्रोसेसिंग में और एक आउटपुट में. इनपुट पोर्शन जो है इट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट that transforms the input data from the physical to the logical form. ये physical से logical में convert करता है. And each input portion को हम बोलते हैं, very very important, we call it as an afferent branch. आउटपुट पोर्शन में हम क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट डेटा लेते हैं लॉजिकल से और फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर हर एक आउटपुट पोर्शन को हम बोलते हैं इफरेंट ब्रांच. ठीक है. और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया TFD का उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसफॉर्म. So this is what we call as a transformation. Then in the next step of transformation, the structured chart is derived by drawing one of the functional component from the central transform and the efferent and the efferent branches. जैसे कि अभी हमने ऊपर रूट मीन स्क्वायर सॉफ्टवेयर पढ़ा था, तो उसमें हमने जब लेवल 1 में बात किया था तो देयर वर 4 बेसिक फंक्शंस इफ यू कैन रिकॉल व्हिच द सिस्टम नीड्स टू परफॉर्म. क्या क्या? सबसे पहले इनपुट लेना यूजर से, वैलिडेट करना नंबर्स को, RMS कैलकुलेट करना और उसको डिस्प्ले करना. देखिए वही हमने किया. First we are validating the input from the data items, then it is being inputted into computing the RMS, and then the RMS being inputted into the result, and then that result RMS is being shown, is nothing but a structured chart. So by observing this is nothing but the DFD जो आपने ऊपर किया था, like that. ये मैंने एक तरीके से बताया, but by observing this level 1 DFD हम identify कर सकते हैं that the validate input as an efferent branch. आपको पता है ये input जा रहा है, so this is an efferent branch, and the outputs like this is known as the efferent branch. और जो remaining portion है इसको हम बोलते हैं central transform. ठीक है. अब हमें जब इसको कंप्यूट करना है, जब दिस इज द स्ट्रक्चर चार्ट, तो हम कैसे बनाएंगे? वी हैव टू कॉल दैट देयर इज अ मेन, वी हैव टू ऑलवेज कॉल दैट देयर इज अ रूट और अ मेन स्टोरी. So here we have to use different colors into it, like we have 3 functions. Firstly we are getting the good data. तो जब आप डेटा ले रहे हैं मेन फंक्शन से और उसके बाद आप इनपुट को रीड कर रहे हैं और यहीं पर ही आप वैलिडेट भी कर रहे हैं. जो वैलिड डेटा है वो यहाँ से जा रहा है, डेटा आइटम्स यहाँ से जा रहे हैं, एंड द वैलिड डेटा इज बीइंग transferred back to the main function, and then we have the valid data from this portion. We have the valid data now that is being involved over here in calculating the RMS, and then the RMS is being passed to the main function. Main से pass होना है, is now there is a root story जहाँ से सब कुछ pass होगा. ठीक है. A central story over here. ठीक है. And the now for RMS, from where to get the RMS in the main, now that is being calculated by compute RMS. Now that is being inputted over here, and then we get the final result is nothing but a structured chart of an RMS that we have calculated from this DFD level 1. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट का इनपुट सेकंड में देना है, सेकंड का इनपुट थर्ड में देना है, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एंड दे कैन run parallelly, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but the things should be available in the main function. Okay.
नाउ दिस वाज द ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, जो सिर्फ आपने देखा और आपने इस डायग्राम को देखा और आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर दिया. देन देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज ट्रांजेक्शन एनालिसिस. ट्रांजेक्शन एनालिसिस में क्या होता है? वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल पाथ्स टू द डीएफडी इज ट्रेवर्स डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट डेटा. इनपुट डेटा को देखकर हम कुछ पॉसिबल पाथ्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं. Now this is in contrast to the transform central system which is characterized by similar processing steps for each data item. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज है. Each different way in which the data input is handled उसको हम बोलते हैं class transaction. So a simple way to define a transaction is to check the input data. The number of bubbles on which the input data are incident वो आपको बता देंगे कितने number of transactions हैं. इनपुट डेटा में आपके पास जितने भी इनपुट जा रहे हैं वही आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बता देंगे. एंड सम ट्रांजेक्शन्स में ऑल्सो दे डू नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर इनपुट डेटा ऑल्सो. तो स्ट्रक्चर्ड चार्ट में हमारा काम क्या है? फिर से हमें एक रूट मॉड्यूल बनाना है और बनाने के बाद हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है. हर एक ट्रांजेक्शन का एक टैग होता है और टैग उसका टाइप बताता है. So transaction analysis uses this tag to divide the system into transaction modules and a transaction central module. Okay, तो आप देख सकते हैं this is a structured chart for the supermarket price scheme. मैंने अब वो नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन दिया, सुपरमार्केट भी हमने ऊपर पढ़ा था. So we have a root thing over here. We need to register the customer, we need to generate the winner list and we need to register the sales. यही तीन चीज हम उधर कर रहे थे, if you can recall. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रूट में कस्टमर के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं जो रजिस्टर्ड कस्टमर में गया एंड देन इट हैज बीन पास्ड ओवर हियर एंड वी गॉट द कस्टमर डिटेल्स. ठीक है, कस्टमर डिटेल्स हमने वापस भेजी एंड अगेन इट वुड बी स्टोर्ड इन द रूट थिंग. अगेन इट हैज बीन पास्ड ओवर हियर एंड वी आर जनरेटिंग अ सीएन. तो सीएन हमें कस्टमर नंबर दे रहा है. ठीक है, तो कस्टमर नंबर भी हमारे को यहाँ पे मिल गया. नाउ while generating the winner list, मान लीजिए अगर हमसे पूछा जा रहा है what are the total we need to calculate the total sales. तो हमारे पास जो डेटा था लाइक विनर लिस्ट जनरेशन में हमने वो पास किया, सेल्स इन्फॉर्मेशन पास किया और उसके बाद हम लोगों ने टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर यहाँ से उसको वापस भेज दिया. लाइक दैट ईच एंड एवरी प्रोसेस इज वर्किंग. Likewise, while we are generating the surprise thing, again the total sales would be given and there would be a surprise list that would be generated and it would be passed over here to the main route. Likewise, अगर आपको गोल्ड कैलकुलेट करना है, गोल्ड लिस्ट किसको हमें गोल्ड देना है, गोल्ड विनर लिस्ट, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेल्स की डिटेल्स जाननी है तो वो आप कैलकुलेट कर कर आप सेव कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर्ड चार्ट इज क्रिएटेड. This is a structured chart for the supermarket price scheme software, which we have already understood while we were discussing about a DFT, that is a data flow diagram. So with this, I think I have made you understood these two things. They are very important for you to understand in order to understand the design phase of the software engineering. ये जो design phase है, now we are in that. और इसमें आपको ये basic चीजें सारी पता होनी चाहिए. तो आज मैंने जितना पॉसिबल हो सका उतने क्वेश्चंस आपको करवाकर इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कमेंट. आई विल बी reverting back, but in case if it is clear to you, now you people can cover up till here. Now further we will, now there are lot many other diagrams also, like there is a UML diagram जो मैं last time आपको बता चुकी हूँ. There is an use case diagrams, there is a class diagram, there is an activity diagram. तो ये सब अभी diagrams हम लोग ने करने हैं, but this is a topic which is going to take some time. So again I will be coming in the next lecture and in that we will be covering about a few more, we will be discussing a few more diagrams. I will be trying to complete the entire diagrams also, but till then you can complete up till here. In case if you have any doubts, you can anytime write to us. We are going to revert, we are going to answer it back. So with this I am ending today's session. That is all for today. If you have liked our lecture, if you have understood our lecture, please do like, share and comment, and thank you and all the best and keep studying. All right, so thank you for today. That's all. Thank you.